بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوت علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا کہ تہذیبی عروج کے دور میں علمی اور فکری ہسٹری کیا ہوئی، یعنی کیا کیا علم مسلمانوں نے سیکھے اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا۔ یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، اور ٹائم لائن آپ کو یہ یاد ہوگی کہ 133 to 656 یہ ہمارا ہجری کیلنڈر میں یہ ہوگا، اور 750 to 1258 کا جو پیریڈ ہے عیسوی کیلنڈر میں، تو یہ ہماری ریسرچ ہوگی۔ پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس ٹائم میں پولیٹیکلی بنو عباس کی حکومت وہ ہو گئی تھی تیار، اور ابتدائی دور آیا اور پھر ایک عروج کا پیریڈ رہا 158 to 246 ہجری، لیکن پھر زوال آیا، اور اس کے بعد پھر مختلف علاقوں میں الگ الگ حکومتیں بن گئیں جو انڈیپینڈنٹ ہو گئیں۔ لیکن ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک عزت کے طور پر بنو عباس کے خلیفہ کو خلیفہ قرار دیا ہوا تھا، ان کو کچھ ٹیکس بھی دیتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں ان کا نام بھی وہ نوٹ کر لیتے تھے کہ جناب وہ ہیں ہمارے حکمران، لیکن ایکچولی اس علاقے کے جو بھی بادشاہ وہی ہوا کرتے تھے۔ پھر عباسی خلافت میں دوبارہ احیاء ہوئی، کچھ امپروومنٹ آئی، لیکن پھر اس کے بعد ڈیزاسٹر بھی آیا 575 to 656 ہجری، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں، اسپین میں، افریقہ میں، پھر اس کے بعد یمن، ایجپٹ، پھر ترکی، ایران، پھر خراسان جو تاجکستان، ازبکستان، افغانستان ہے، پھر اسی طرح سندھ، پنجاب، اور پھر انڈیا میں بھی الگ الگ حکومتیں، یہ بادشاہی حکومتیں الگ الگ بن گئی تھیں۔ تو یہ پولیٹیکل تو یہ سچویشن تھی۔ اب اس کے اندر علمی اعتبار سے کیا امپروومنٹ ہوئی، یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا۔ پچھلے لیکچر میں تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ تہذیبی عروج کے دور میں علم و فکر کیسے سٹارٹ ہوا تھا، کہ کاغذ کا انقلاب آیا تھا، کہ جب پیپرز مسلمانوں نے سیکھ لیے تھے، اور پھر اب انہوں نے اس کی بہت سی فیکٹریز بن گئی تھی، اور ہر طرف کاغذ تھا، تو پھر علم بہت تیزی سے پھیلا، پھر ایجوکیشن کا سسٹم بہت اچھا بن گیا تھا، اور سماجی اور علمی انقلاب بھی آیا اس کے نتیجے میں، کہ لوگوں میں علمی شوق آیا اور لوگوں نے علم سیکھے۔ تو یہ پچھلے لیکچر میں ہماری ڈسکشن ہو چکی تھی۔ اب ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ ایک ایک علم کو ہم لے کے الگ الگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رہا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ عربی زبان، علوم القرآن، سنت نبوی اور احادیث، اور پھر علم الفقہ، یہ ہماری ٹاپک ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلے لیکچرز میں ہم لوگ علم تاریخ، پھر ہم نیچرل سائنسز میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے مسلمانوں نے کیا سیکھا، اور اس میں کیا انہوں نے ایڈ بھی کیا اس میں، کہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اسٹرانومی اور جیوگرافی، میڈیسن، اس میں انہوں نے کیا کیا۔ پھر سوشل سائنسز میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجی، سوشیولوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنسز، ان سب میں کیا مسلمانوں نے سیکھا اور اس میں ایڈ کیا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آخری لیکچرز میں ہم پھر دیکھیں گے کہ پراسرار علوم کیسے پیدا ہوئے، پھر فلسفہ اور علم الکلام یہ کیا تھا، اس میں کیا فرقے بنے اور کیا رزلٹ آیا، اور پھر تصوف اور روحانیت یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئی۔ تو یہ ہمارا اصل ٹاپک یہی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں 2-3 لیکچرز کی، بلکہ شاید 4 لیکچرز کی بھی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ تو ہم لوگ عربی زبان سے ہی اور علوم القرآن سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کا مسلمانوں میں کیا حیثیت رہی ہے؟ دیکھیے کہ عرب ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا تھا، اور اس کو قرآن مجید کی شکل میں پورا اللہ تعالیٰ کا پورا میسج پہنچا دیا تھا۔ تو پھر ہوا کیا کہ عربوں کی تو یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ انہوں نے
उस जमाने की दोनों सुपर पावर्स पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर दोनों को फतह किया, तो फिर ये ताजिकिस्तान से लेके और मराकश तक तो ये सहाबा कराम के ज़माने में हो गई थी, और फिर उसके बाद स्पेन और सिंध, और फिर सिंध से लेके इंडिया तक की कुछ अरसे में हुकूमतें बन गई थी मुसलमानों की। तो फिर अरबी जुबान का क्या असर आया और कुरान मजीद का क्या असर आया, ये हमारा टॉपिक है। तो अरबी जुबान में देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये बिल्कुल लिंगुआ फ्रांसा बन गई थी अरबी, यानी मुश्तरक जुबान बन गई थी। वजह क्या थी कि अब मुसलमानों की हुकूमत जब ताजिकिस्तान से लेके और स्पेन तक आ गई, तो फिर बहुत से मुसलमान इधर उधर आए, फिर उन्होंने दावत पहुंचाई थी जो आप पढ़ चुके थे उसकी। तो उसमें से फिर रिजल्ट हुआ कि बहुत सी कौमों के जो लोग हैं वो भी ईमान लाए। तो फिर जाहिर है कि उनकी अपनी जुबान थी, हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज होती थी। लेकिन अब यह था कि मुसलमानों के लिए कि बड़ी आसानी हो गई थी कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक इमिग्रेशन करना या एक सफर करना ही उनके लिए बहुत एक फैशन बन चुका था। बिजनेस भी चला रहे थे और साथ साथ इल्म भी हासिल कर रहे थे। तो ये एक सिचुएशन थी। तो उसके लिए अब जाहिर है कि एक बिल्कुल ग्लोबल लैंग्वेज की जरूरत थी, और वो अरबी जुबान ही बनी कि जिसके जरिए से, यानी अब अगर इंडिया से आप चले और आप इजिप्ट में चले गए, आपने बातचीत करनी है तो आपको अरबी आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर ये होता कि इंडिया और सिंध में भी लोग अरबी सीखते और जाके दूसरे ममालिक में ऐसे बात करते। इसी तरह अगर कोई मराकश के लोग अगर अफगानिस्तान में आ गए या इंडिया में आ गए, तो उन्होंने अगर बात करनी है तो अरबी में करनी है। तो इस तरह से अरबी एक बिल्कुल ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। इसको बिल्कुल आप ऐसे ही देख लें, उसके एग्जाम्पल कि जैसे हम लोगों के भी हर एक की अलग अलग जुबानें होती हैं, लेकिन ग्लोबली आजकल इंग्लिश की लैंग्वेज है कि जिसमें आप किसी भी मुल्क में जाएं तो आप इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो सेम जब मुसलमान सुपर पावर बने थे तो उस वक्त अरबी में बात चलती थी। अब इसमें हुआ क्या कि गैर अरब अफराद में अरबी सीखना और शादियां भी हुई। अच्छा, अरबी क्यों सीखी? इसलिए कि उन्होंने दूसरे मुल्कों में जाना है, बात करनी है और कुरान को पढ़ना है। और फिर जब ये बुक्स भी जिस वक्त पब्लिश होनी शुरू हुई तो इसको भी तो पढ़ना है ना, तो अरबी सीखनी जरूरी हुई। लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर शादियों का आया। यानी हुआ क्या कि अरब मुख्तलिफ इलाकों में जाके सेटल हुए थे, सहाबा कराम में भी हो गए थे, फिर अगली नस्लों में भी बहुत से लोग इधर उधर सेटल हुए तो फिर वहां के लोगों में शादियां भी हुई। तो जब शादियां हुई तो फिर अब अगली नस्ल पैदा हुई। अब अगली नस्ल को अपने बाप की जुबान भी आ गई और अपनी माँ की जुबान भी आ गई, अब जो भी लैंग्वेज थी उनकी, लेकिन एक उनमें से अरबी थी जिससे उनको आ गया यह तरीका। अब जब शौक आया तो फिर दीगर जुबानों का अरबी जुबान में तर्जुमा का एक बड़ा सिलसिला हुआ। यानी अब मुसलमानों में एक ये शौक पैदा हुआ इल्म का, और ये ज्यादातर शौक आप पढ़ चुके हैं उसमें कि उन लोगों को ज्यादा शौक आया जो गैर अरब थे। अरबों में कुछ इतना इल्मी जौक नहीं था बहुत ज्यादा, तो लेकिन अब जाहिर है कि अब ईरानी लोग जो हैं वो मुसलमान हुए हैं, या तुर्कमानिस्तान के लोग जो है वो मुसलमान हुए हैं, या मराकश के हुए हैं। तो इनको पहले ही इनका टैलेंट था कि अपने पेरेंट्स से उनको एक ये शौक था कि जुबान सीख के मजीद उलूम हासिल करना, तो वो एक इल्मी शौक उनमें रहा और वहां से फिर ये हुआ कि अरबी जुबान में ही हम ट्रांसलेट करें। अब ये अरबों ने जिनकी हुकूमत थी उन्होंने स्पेशली ये कहा कि जनाब आपकी जुबान में जो जो इल्म है इसको प्लीज ट्रांसलेट करके अरबी में करें। और खुद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में ये कर लिया था कि ब्यूरोक्रेट्स जो रोमन एम्पायर के थे इनको कहा कि भी आप ये गवर्नमेंट के जितने मामलात हुए इन सब को आप अरबी में ट्रांसलेट करके आप बाकायदा बुक्स की शक्ल में हमें दें। तो इन्होंने किया, तो उसको सैलरी देते रहे। लेकिन इससे ज्यादा फिर ये मामला हुआ कि जब बनु अब्बास की हुकूमत बनी थी तो इन्होंने तो ये किया कि बहुत सारे एरियाज के जैसे इंडिया
ताजकिस्तान, अज़बकिस्तान, इन सब को कहा था कि भी आपके पास जो जो इल्म है इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करें। उसके लिए उनको सैलरीज मिलती थी और इन लोगों ने फिर पूरा अरबी में ट्रांसलेट किया। इसकी कुछ डिटेल मैं और आपके सामने अर्ज करूंगा। दीगर जुबानों के अल्फाज और तसव्वुर जो कॉन्सेप्ट हैं ये अरबी में दुखूल हो गए। यानी हुआ क्या कि अब और जुबानों के असरात वो अरबी में आ गए, बहुत से अल्फाज भी आ गए, कॉन्सेप्ट्स भी आ गए, ये भी आ गया, तो लोगों का इल्म फैलने लगा। और मजहबी असरात से हम देखिए कि कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ये बहुत ज़्यादा आम होने लगे, इसलिए कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जिन्होंने कबूल किया था तो इनको ये पता था, चल गया था कि भी ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह ताला की किताब है, अब इसे हमने पढ़ना है और इस पर गौर करना है और इस पर अमल करना है। तो लोगों में ये शौक आया और अरबी भी सीखी और कुरान भी सीखा। और फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कैसे गुजरी और आपने क्या क्या इरशादात फरमाए, तो इन सब पे अहदीस वो फैलने लगी, तो वो भी उन्होंने सीखनी शुरू की। तो इससे भी अरबी के असरात ऐसे आए। और फिर अरबी जो है, आप ये देखिए कि स्पेन की जो लैंग्वेज मेन थी वो अरबी हो गई थी। अब स्पेनिश बहुत से लोग वो थे, वो ईमान लाए थे, तो अपनी जो भी स्पेनिश जुबान उस जमाने में वो करते थे वो था, लेकिन उसके साथ अरबी भी उन्होंने सीखनी शुरू कर दी। अच्छा, उन्होंने चलो इतना ना सीखा हो, लेकिन अगली नस्ल ने ज्यादा सीखा, तो अगली नस्ल दर नस्ल ये लैंग्वेज ज्यादा फैलने लगी। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जुबान में, ये रस्मुल खत का इर्तिका। वर्रकीन में फने खताती, यानी इसको आप कैलीग्राफी कहते हैं। यानी ये वर्राकीन कौन थे, ये पिछले लेक्चर में मैंने अर्ज किया था कि वर्राकीन कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट थे कि किसी भी स्कॉलर ने किताब लिखी है तो वो चाहते हैं कि भी इसकी ज्यादा कॉपीज बन जाए। तो वर्राकीन वो लोग होते थे कि जिनके पास बहुत बड़े पेपर्स होते थे, तो इनको आप एक उस्ताद ने या एक स्कॉलर ने अपनी किताब दी कि जनाब आप इसकी कॉपीज बना दें, तो वो उसके लिए हजारों कॉपीज बना देते थे वर्राकी। और उन्होंने ही फिर ये कैलीग्राफी को इम्प्रूव किया कि अरबी जुबान का कुछ फॉन्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब नित नए खतूत या खत से मुराद फॉन्ट्स के फॉन्ट बड़े अच्छे अच्छे बनने लगे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। ये देखिए, इब्तदाई दौर का फॉन्ट ये था, ये जो येलो कलर की एक पुरानी किताब की ये पिक्चर है, तो ऐसा था। उसके बाद तो फिर नए नए खतूत बने, बहुत से फॉन्ट बने, खत्ते कूफी, ये देखिए, ये आप रिलेटिवली आपको बेहतर नजर आएगा, आपको पढ़ना आसान होगा। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा खत्ते नुस्ख ये आया। अब देखिए, ये सूरतुल फातिहा है तो आपको फौरन इसमें समझ आ जाएगी, इसमें और ज्यादा अच्छा फॉन्ट आया। और फिर उससे भी अच्छा फॉन्ट बन गया खत्ते सलस, जो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, तो ये इस तरह का फॉन्ट हुआ। तो ये देखिए, ये 4 की एग्जाम्पल है, वरना और बहुत से फॉन्ट इजाद हुए। और लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे कि ये खत्ते सुलस और खत्ते नुस्ख ये ज्यादा कॉमन हुए। तो आप अगर पुरानी कोई आपको बुक मिल जाए जो आपसे कोई 1000 साल पुरानी बुक्स हो, तो वो आपको इन्हीं फॉन्ट्स में आपको नजर आएंगे।